हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस द इम्पोर्टेंट न्यूज ऑफ द हिंदू एडिशन ऑफ 6 मई 2023. So some of the news which is very important from the CLAT, AILET and other law entrance exam point of view is एक तो ये कि that COVID is now no longer a health emergency as declared by World Health Organization. पर यहाँ पे World Health Organization ने caution भी किया है कि the pandemic has not ended and recently two regions, especially Southeast Asia or West Asia, there has been a spike in cases of COVID-19. Okay, so that we are going to see, which is important, and then we are also going to see news from Maganrega, where now an option has been given, a new feature has been added, that now there will be a confirmation of attendance through messages to the workers of the Maganrega. Okay, so that is again an important news. And then today we will focus on the crisis in Manipur, which is happening between the two groups, which is Meitei, which is a dominant population over there, and the next one is other tribal groups which live in hill areas. Okay, tribal groups. तो ये पूरा एक इशू है, तो हम अपना जो डिस्कशन है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल आल्सो सी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, एंड देन अगेन that the problem between India, Pakistan and India, China has surfaced over there. And then there is one editorial about SCO and the related emerging geopolitical concerns related to India. तो ये हमारे important issues होंगे. Fine. So let's start with the Manipur, that is Central Security Forces flood crisis hit Manipur. So यहाँ पर अगर आप देखेंगे that center has taken control over of security in violence hit Manipur by deploying 12 companies comprising 1,000 personnel of the Border Security Force and airlifting anti-riot vehicles to the northeastern state. तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल पुलिस, रिजर्व पुलिस फोर्स विच इज़ अ पैरामिलिट्री फोर्स, वो भी हैं. देन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स की टीम दे हैव बीन डिप्लॉयड. नाउ यहाँ पे जो डिस्कशन हो रहा है वो है आर्टिकल 355 का. सो सेंटर जो कंट्रोल लेती है, तो दैट हैपन्स अंडर आर्टिकल 355 विच एम्पावर्स द सेंटर to take all necessary steps to protect the state against internal disturbance and external aggression. बट जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है, इट हैज़ डिक्लाइंड इन्वोकिंग आर्टिकल 355. उसके बाद जो सिक्योरिटी एडवाइजर हैं मणिपुर गवर्नमेंट के, वो हैं फॉर्मर सीआरपीएफ चीफ कुलदीप सिंह. सो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द मणिपुर गवर्नमेंट. उसके बाद मेघालय इज मूविंग टू ब्रिंग नेटिव्स बैक होम. सो द नेशनल पीपल्स पार्टी लेड मेघालय गवर्नमेंट, दे हैव ऑर्गेनाइज्ड स्पेशल फ्लाइट्स to bring back people stranded in Imphal, which includes 60 students and 25 members of Shillong's Lajong football team. So this is the news about the Manipur. So अगर आप देखेंगे मणिपुर, so became the part of India in 1949. अब यहाँ पे जो डोमिनेंट ग्रुप है, अगर आप मणिपुर का जोग्राफी देखें तो एक होता है आपका वैली एरिया और दूसरा होता है आपका हिल्स एरिया. ठीक, अब जो वैली एरिया है इट इज डोमिनेटेड बाय Meitei और जो हिल एरिया है इट इज डोमिनेटेड बाय ट्राइबल पीपल. नाउ व्हाट इज द मेजर डिमांड ओवर हियर इफ यू विल सी. तो यहाँ पे जो Meitei ग्रुप है, ओके, द Meitei ग्रुप, दे आर डिमांडिंग देयर इंक्लूजन इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स. ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज है. शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनका कहना है कि जब प्रिंसली स्टेट था, जब मणिपुर, बिफोर बिकमिंग द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, so Meitei they had a scheduled tribe status which was taken away after Manipur became the part of India. Now they moved Manipur High Court. And now the Manipur High Court, a single bench judge of the Manipur High Court, has directed the state government of Manipur to forward the proposal to the president for the inclusion of Meitei in the scheduled tribes. Now this has been opposed by the tribal groups in the hilly areas. Okay, सो नाउ द वायलेंस इज बिकॉज ऑफ दैट. Meitei का कहना है कि हमें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस चाहिए क्योंकि हमें अपना डिस्टिंक्ट कल्चर जो है उसको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम इंक्लूजन. तो जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में अगर हम रहेंगे, सो वी विल बी गेटिंग दैट बेनिफिट्स. उसके बाद जो अगर आप Meitei देखेंगे तो Meitei ग्रुप्स दे ऑलरेडी हैव शेड्यूल्ड कास्ट स्टेटस और ओबीसी स्टेटस, दे आर ऑलरेडी इंजॉइंग द बेनिफिट. बट यहाँ पे जो डिमांड है कि ये चाहते हैं एसटी स्टेटस टू preserve their culture which has been opposed by the other tribal groups. उसके बाद
The next is Article 371C. Okay, so this is the article which provides some special provisions for the state of Manipur. Now the next news is about the Kerala story. तो एक ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, रिसेंटली भी केरला हाई कोर्ट ने गो अहेड दिया है इस मूवी के स्क्रीनिंग को. सो केरला स्टोरी के बारे में है ये. सो वी विल सी दैट न्यूज़ दैट द केरला स्टोरी, जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, बट वी विल सी इन द नेक्स्ट पेजेस ऑन द स्टेट. तो जो केरला हाई कोर्ट है उसने इस मूवी के स्क्रीनिंग को ग्रीन सिग्नल दिया है, सेइंग दैट दिस मूवी टॉक्स अबाउट द इस्लामिक स्टेट, नॉट अबाउट द इंटर रिलीजियस राइवलरी और समथिंग लाइक दैट. Okay, so here is the news. That is, no stay on screening of the Kerala story, says Kerala High Court. So a division bench of the Kerala High Court has declined to restrain the producer and director of the film The Kerala Story from releasing or screening it. Okay, so यहाँ पर आप देखेंगे that court has noted down that the film was a fictionalized one and contained a dramatized version of the events, and it has also said that जो एक चला है कि that film is based on incorrect facts and contain derogatory remarks against one particular community. So यहाँ पे जो कोर्ट ने कहा है that there are many movies in which Hindu sannyasis are shown as smugglers and rapists. No one says anything. In Kerala we are so secular. Now coming to the Shanghai Cooperation Organization. ओके, तो इसका जो सबमिट होने वाला है इस साल वो इंडिया में होने वाला है. सो इंडिया इज गोइंग टू होस्ट दी एससीओ समिट दिस ईयर. अभी जो हम बात कर रहे हैं इसके पहले हमने देखिए एक डिफेंस मिनिस्टर्स मीट की बात की थी. अब ये जो मीट की जो हम बात कर रहे हैं ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीट है. ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स की मीट है. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो दो कंट्रीज खास करके हमें डिस्कस करना होगा, एक तो चाइना, दूसरा पाकिस्तान. So they both are the members of Shanghai Cooperation Organization. So अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि यहाँ पे दो फ्रिक्शन एरिया की हमेशा बात होती है. ठीक है, जैसे कि अब जो बॉर्डर इशू है वो क्या है, दैट इज अबाउट डिसएंगेजमेंट. अभी रिसेंटली क्या हुआ था, 18th कमांडर लेवल टॉक हुआ था, 18th कमांडर लेवल टॉक बिटवीन इंडिया एंड चाइना फॉर डिसएंगेजमेंट. फाइन. सो इट वाज हेल्ड इन चोशुल मोल्दो सेक्टर और फ्रॉम द चाइनीज साइड. तो यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द सेक्टर से जो है वो डिसएंगेजमेंट हो चुका है, बट दो सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ है, जिसको हम कहते हैं फ्रिक्शन एरिया. दिस इज डेप्सांग एंड डेमचोक. सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि दैट चाइना हैज ड्रैग्ड इट्स फीट इन द स्लो मूविंग डिसएंगेजमेंट टॉक्स दैट हैव कंटिन्यूड फॉर 3 years, और अभी तक इन दोनों एरिया से जो डिसएंगेजमेंट होना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है. सो इफ़ यू विल सी ओवर हियर कि इसके रिस्पॉन्स में अब देखिए जो चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं किन गैंग, वो क्या कह रहे हैं. ही इज सेइंग दैट द करंट सिचुएशन ऑन द चाइना इंडिया बॉर्डर इज जनरली स्टेबल एंड द टू साइड शुड कंटिन्यू टू इम्प्लीमेंट द इम्पोर्टेंट कंसेंसस बिटवीन द लीडर्स ऑफ द टू कंट्रीज. ओके, एंड दे शुड कंसोलिडेट देयर अचीवमेंट्स मेड, जिसको हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने जो है उसको रेफ्यूट किया है कि द सिचुएशन इज नॉट स्टेबल. So he is calling for a detailed discussion with the state councillor and foreign minister Qin Kang of China on the bilateral relationship, and he is highlighting the issue that is resolving the outstanding issues and ensuring peace and tranquility in the border areas. Now if you will see that यहाँ पे अगर चाइना का जो ऑब्जेक्टिव है तो देखिए, अगर आप लास्ट पैराग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. That is, China is willing to work with India to carry out bilateral consultations and exchanges, enhance dialogue and cooperation under the multilateral framework, and deepening the cooperation on international and regional issues. But इंडिया का कहना है कि जब तक LAC पे टेंशन बना रहेगा तब तक हम बाकी डायमेंशंस में आगे नहीं बढ़ सकते. Okay, so it will be possible if the line of actual control disengagement is completed and peace is restored on the borders. Fine. अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है टू इम्प्रूव द सिक्योरिटी इन द बॉर्डर विलेजेस, दैट इज कॉल्ड एज वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम. ओके, नाउ दिस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एम्स टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन बॉर्डर एरियाज. ओके, so it will be implemented in around
2697 villages across 4 states and 1 union territories. ये 4 states जो आपके होंगे वो होंगे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, देन उत्तराखंड, देन हिमाचल प्रदेश एंड देन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। वो सारे स्टेट्स और यूटी विच मेक्स बॉर्डर विद चाइना। और इंडिया का जो LAC है चाइना के साथ, ओके, तो इंडिया जो है वो रिकॉग्नाइज करता है अराउंड 3488 किलोमीटर ऑफ LAC, बट चाइना इसको रिकॉग्नाइज करता है सिर्फ 2000 किलोमीटर का एरिया, ओके, एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम बिटवीन द कंट्रीज। नाउ द नेक्स्ट इज फ्रॉम डिफेंस, दैट इज अ रियल टाइम ऑपरेशनल पिक्चर अमंग सेवरल ऑटोमेशन इनिशिएटिव्स ऑफ आर्मी। तो अब अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेशन जो है टेक्नोलॉजी है वो हमारे आर्मी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम। दिस बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम इट कम्स अंडर प्रोजेक्ट संजय। तो इसके अंदर क्या है कि दैट देयर विल बी अ सर्वेलेंस सेंटर्स फॉर ऑल फील्ड फॉर्मेशंस बाय दिसंबर 2025। इसमें क्या होगा कि जो थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स जो लगे हुए हैं बॉर्डर एरिया में, उनसे जो डेटा आ रहा है उसको इंटीग्रेट किया जाएगा from commanders and staff level and providing the sensor shooter grid by integrating it with artillery combat command and control system, ताकि क्विक डिसीजंस लिया जा सके इन रियल टाइम। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि इस सिस्टम में एक और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, दैट इज इट विल ऑल्सो इंटीग्रेट डेटा ऑन द मूवमेंट ऑफ इंडियाज एडवर्सरीज रिसीव्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अक्रॉस बॉर्डर्स विच इंक्लूड सेंसर्स, सैटेलाइट्स, UAV और अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एंड पेट्रोल्स, ओके। अब ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, सो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद, इट इज़ द प्रोजेक्ट सिस्टम इंटीग्रेटर एंड आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ट्रायल्स अक्रॉस टेरेन इट हैज शोन अ सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 95%. The next is center looks into options to counter EU's carbon tax plan. तो what is this EU's carbon tax plan? तो जो यूरोपियन यूनियन है उसने एक प्लान इंट्रोड्यूस किया है जिसको कहते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें एक एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा उन सारे प्रोडक्ट्स पे विच आर डिप्लॉइंग नॉन ग्रीन टेक्नोलॉजीज। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर एंड देन देयर विल बी अ टैक्स लिवाई फ्रॉम जनवरी 2026। अब ये इंडिया को कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं स्पेशली इंडियन मेटल एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स विच आर एक्सपोर्टेड टू EU, they will be affected by this decision of European Union। तो अब हमारी जो मिनिस्ट्री है दैट इज कॉमर्स मिनिस्ट्री अभी बहुत सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है टू कोप अप विद दिस यूरोपियन यूनियंस यूनिलैटरल डिसीजन टू इंट्रोड्यूस अ कार्बन टैक्स, ओके। सो यहाँ पे एक चैलेंज हो सकता है एट द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओके, एंड यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री कैन टेक मेजर्स टू हेल्प स्मॉल इंडियन एक्सपोर्टर्स। क्योंकि इसमें देखिए प्रॉब्लम क्या है कि जब आपका एक्स्ट्रा लीवाई लगता है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो अनकॉम्पिटिटिव हो जाता है, ओके, एंड देन कंट्रीज लाइक इंडिया दे नीड टाइम टू मेक अ ट्रांजिशन टूवर्ड्स ग्रीन टेक्नोलॉजी। अब हम आते हैं SCO और फिर अब एक पाकिस्तान का भी एंगल इसमें ले लेंगे, ठीक है। तो इंडिया और चाइना में जो फ्रिक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, बॉर्डर इशू, और इंडिया पाकिस्तान में जो फ्रिक्शन पॉइंट होता है वो क्या होता है, टेररिज्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो SCO फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग थी इट कंक्लूडेड बट इट वाज ओवरशैडोड बाय बिटवीन इंडिया पाकिस्तान ओवर जम्मू एंड कश्मीर एंड टेररिज्म। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सो इन हमारे जो कॉलिंग पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी एज अ प्रमोटर, जस्टिफायर एंड स्पोक पर्सन ऑफ द टेररिज्म, सो इंडिया हैज क्रिटिसाइज्ड इस्लामाबाद पाकिस्तान वंस अगेन फॉर सपोर्टिंग टेररिज्म। उसके बाद जो सेकेंड इशू है वहाँ यहाँ पे एक तो हमने LAC तो देख ही लिया है, दूसरा है कि दैट इंडिया हैज कंसिस्टेंटली अपोज्ड द इंक्लूजन ऑफ द BRI इन द SCO स्टेटमेंट। व्हाट इज BRI? इट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ओके, इट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये जो प्रोजेक्ट है वो चाइना का है। इसमें जो है ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स ओवर लैंड एंड मैरीटाइम सी रूट्स विल बी डेवलप्ड to improve connectivity between China, South Asia, Southeast Asia, Africa, West Asia, Europe, ठीक है। But India is not part of this project. So India has consistently opposed the inclusion of BRI in the SCO.
द नेक्स्ट इज द मनरेगा वर्कर्स मे गेट टेक्स्ट मैसेज कंफर्मिंग देयर अटेंडेंस। तो यहाँ पे अब जो है पहले एक अटेंडेंस रिकॉर्ड सिस्टम लॉन्च किया गया था मनरेगा में, जिसका नाम था नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, विच यूज टू अपलोड रियल टाइम अटेंडेंस ऑन द सेंट्रल पोर्टल फॉर मनरेगा। फिर उसके बाद जो है वो वेजेस डिक्लेयर होते थे। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे मनरेगा में इसको क्रिटिसाइज भी किया था दैट देयर वर कंप्लेंट्स अबाउट पैची इंटरनेट विच स्क्यूड देयर अटेंडेंस रिकॉर्ड। मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी सही न होने की वजह से जो उनके अटेंडेंस रिकॉर्ड थे वो ठीक से अपलोड नहीं होते थे, जिससे उनका वेजेस जो है वो इम्पैक्ट होता था। अब मनरेगा में अगर आप देखेंगे तो मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स दे आर वुमेन, सो दे वर ऑल्सो एग्रीव एंड देयर वाज अ प्रोटेस्ट एट जंतर मंतर फॉर नियरली 60 days। ओके, तो अब जो है सेंटर ने क्या कहा है कि दैट there will be a text confirmation of attendance to workers at the end of each work day or the end of one work schedule। मतलब कि अटेंडेंस आपका रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है वो अब वर्कर को पता चल जाएगा थ्रू अ टेक्स्ट मैसेज। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले वेज आने के बाद पता चलता था कि मेरा अटेंडेंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो अब हर वर्कर्स को एक मैसेज आएगा आफ्टर द एंड ऑफ ईच वर्क डे और द एंड ऑफ वन वर्क शेड्यूल टोटल, सो दैट दे कैन वेरीफाई देयर अटेंडेंस रिकॉर्ड और जो वेजिस है उसमें दिक्कत ना हो। The next is news coming from the health sector, that is COVID pandemic is no longer an emergency declares World Health Organization। So World Health Organization ने यहाँ पे notice किया है कि that from past 1 year there has been a downward trend in this disease, so it has been removed from the emergency category, but the WHO has cautioned that this disease has not ended and certain regions like Southeast Asia and West Asia they are still seeing the upsurge in the cases। अब एक हम गोल्ड इंपोर्ट का ले लेते हैं दैट जनवरी मार्च गोल्ड डिमांड फॉल 17% ऑन हाई प्राइसेस। सो अगर आप देखेंगे WGC का दैट इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल दे हैव सेड दैट ड्यू टू हाई प्राइसेस द डिमांड फॉर गोल्ड इन इंडिया इन Q1 2023 that is January to March shrunk by 17% to 102.5 tons as compared with overall demand of 135.5 tons। अब हम चलते हैं एक एडिटोरियल लेते हैं दैट इज द अराइजन फॉर इंडिया बियॉन्ड द G20 SCO समिट। तो यहाँ पे इस आर्टिकल ने डिस्कस किया है इंडिया के चैलेंजेस उसके नेबरहुड में और उसके रीजनल सिक्योरिटी को लेके, और ये बताया है कि जो अगर आप देखेंगे कि इंडिया जो है इस साल G20 भी होस्ट कर रहा है और SCO भी होस्ट कर रहा है। ओके, बट दिस आर्टिकल सेज दैट देयर इज समथिंग टू लुक बियॉन्ड दिस टू समिट्स ऑल्सो because the whole geopolitical scenario in Asia including West Asia is changing very rapidly। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे that there has been many priorities which have been added in G20 like climate change, clean energy, sustainable development, then multilateral institutions reform। So these are likely to take back seats which has been highlighted by India क्योंकि वर्ल्ड में इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। तो जो दो चेंजेस वो सिग्निफिकेंटली जो हाईलाइट करते हैं वो ये करते हैं दैट इंडिया नीड्स टू बी अवेयर दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ G20 अपीयर्स टू बी डिक्लाइनिंग इन टुडेज वर्ल्ड। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आपको याद होगा तो जो फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट हुई थी G20 की, तो उसमें जो है एक जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आया था, उसमें एक चेयर की समरी आई थी because there was problem on the wordings of Russia-Ukraine crisis which was opposed by Russia and China both, and both are the members of SCO also and G20 also। but अगर हम SCO की बात करें so SCO का जो है वो ट्रैक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ईरान जो है वो मेंबर बनना चाहता है, सऊदी अरेबिया वांट्स ऑब्जर्वर स्टेटस एट SCO, बेलारूस इज आल्सो इन पाइपलाइन टू बिकम द मेंबर। ओके, अब अगर हम इसको देखें इंडिया का पोजीशन, तो अब दो कैंप बन चुके हैं वर्ल्ड में रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद। एक तो जिसको USA और वेस्टर्न कंट्रीज लीड कर रही हैं, दूसरा जो चाइना और रशिया लीड कर रहे हैं, तो जिनका अपोजिशन है कि भाई यूनिलैटरल सैंक्शंस नहीं लगना चाहिए। अब इंडिया ने दोनों को सपोर्ट तो नहीं किया है बट हैज़ नाउ इन बिटवीन वेयर USA एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान नाउ दे आर डिमांडिंग दैट इंडिया शुड कम क्लियर ऑन द वॉर। ओके, नाउ इफ यू विल सी दैट इंडिया जो है भले वॉर क्लाउड्स चल रहे हैं यूरोप में और ईस्ट पैसिफिक में भी जो है वो टेंशन बढ़ रहा है, स्पेशली अगर आप देखोगे ताइवान में
तो ताइवान के आसपास अभी चाइना ने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कैरी आउट किया है। फाइन। उसके बाद अगर आप देखेंगे चाइना it has a major role in West Asia where it has tried to diffuse the tension between Saudi Arabia and Iran. Okay, so if you will see over here that these factors are accompanied by display of naval prowess in the sea around East and Southeast Asia and flexing of military muscle in Ladakh and Arunachal sector of Sino-Indian border. Fine. सो इफ यू विल सी ओवर हियर दैट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चाइनीज़ का जो असर्टिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। इवन द इफ यू विल सी द इंडियन ओशन रीजन, तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम हैज सीन द पार्टिसिपेशन बाय एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ इंडियन ओशियन स्टेट्स। देन द नेक्स्ट इज चाइना जो है इट इज सीकिंग टू वाइडन द आर्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया। सो करेंटली अगर आप देखेंगे तो चाइना इज टारगेटिंग इंडिया फॉर गोइंग क्लोजर टू यूएस एंड द वेस्टर्न ब्लॉक for its partnership in Quad as well as participation in maritime surveillance exercise with US, Japan and Australia, that is Malabar Naval Exercise। ठीक है। Then if you will see that चाइना का जो इन्फ्लुएंस है इंडियन नेबरहुड में, जैसे कि अगर आप देखें नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, अब इजिप्ट भी हो गया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। सो दैट इज़ द ग्रोइंग चैलेंज टू इंडिया फ्रॉम चाइना इन दिस सेंचुरी। उसके बाद हम इंडियाज रिलेशनशिप विद रशिया देखें। ठीक है। सो इट ऑल्सो सीम्स टू बी इन अ प्रोलॉन्ग फेज ऑफ अनसर्टिनिटी। अगर आप देखें तो रशिया इज द लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया, बट इंडिया इज नाउ शिफ्टिंग टूवर्ड्स यूएसए फॉर इट्स डिफेंस सप्लाई। उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से अब एक नया ग्रुप जो बन के आ रहा है दैट इज Russia-China strategic relationship getting stronger and both countries openly giving vent to their belief in the utility of such a relationship। इसका मतलब हुआ कि that now they are projecting new vision for their relationship in the world where they can see that the influence of US in West Asia is decreasing, so there China has taken a inroad through Saudi-Iran diplomatic rapprochement। So in that time if you will see that this thing is taking place। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे that the economic content of the bilateral relationship is limited and for the present linked to trading in oil, imparting little dynamism to the relationship। अब आज अगर हम इंडिया और रशिया का रिलेशनशिप देखें तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेड तक सीमित है। ठीक है। जियो पॉलिटिक्स में क्या दोनों कंट्रीज प्ले कर सकती हैं रोल, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रहा है। ठीक है। So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with the daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.